Welcome back, dear students. So, this is your chapter 4 revision of civics only. Revision of chapter number 4 civics. Chapter name is gender, religion, and caste. First video I explained you about the basis of social differences. I explained you about the gender. I explained you the different important concepts coming under gender division. Now we will take the next heading, and that is your religion. Religion which give birth to communalism. Communalism means community based on religion. Group of people living in a community and which have specific people of a particular religion. So that is known as communalism. Gandhian view is also there, that is explained that Gandhiji's views for religion is that religion cannot be separated from politics. But according to him, all these normal religions are not the religion. Actually, for him, the main thought, the main idea, the main teachings of the religions were the different kind of religions on which Gandhiji tried to give stress. Then humanist view is there. The humanist views means humanism. ह्यूमन बींग्स के जो रिलीजन बेसिस पर है that they always prefer to have they always give more preference to their own religion. They always prefer to have their own religious customs and duties also. They feel inferior to themselves in case their thoughts or their views were not given importance. So all these are there. Then is your secularism. All of above, India is known as a secular country. India is known as a secularism. Secularism here means a country which does not give more preference to any of the religion. It is not having any kind of specific religion. It gives equal importance to all religions. So many more things are also there in this secularism. Now I'll explain you some more important things. Communalism in politics. Communalism in politics means reflected in routine belief such as religious prejudices, stereotypes, feeling of superiority. So the most important thing in the communalism itself is reflected in routine belief. Actually, in our daily beliefs also, in our daily routine works also, some of the people, they give more importance to their religion. So religious prejudice is also there. Prejudice means uh, the the thoughts which are coming from past. पहले से ही जो चीज़ें, जो धारणाएं, जिसको आप हिंदी में बोलते हो, जो धारणाएं पहले से चली आ रही हैं. स्टीरियोटाइप मीन्स रूढ़िवादी धारणा. हमारा रिलीजन में ये सब चीज़ें होती हैं, हमारे रिलीजन ज़्यादा अच्छा है उस रिलीजन से. ऑल दीज थॉट्स आर नोन एज दिस are just on the basis of stereotype only. फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी. अपने रिलीजन को बाकी के रिलीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ज़्यादा अच्छा समझना, ये भी हमारे कॉम्युनलिज्म को का मेन बेस है. कॉम्युनलिज्म मतलब सोसाइटी का डिवीज़न, सोसाइटी का डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. फॉर्मेशन ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, सॉरी कम्युनल पार्टीज़. इसके बाद हमारा कम्युनलिज्म का जो कंसेप्ट थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है. व्हेन सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ कम्युनलिज्म एक्ट इन पॉलिटिक्स. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनकी फॉर्मेशन का जो बेस है वो कम्युनलिज्म हो जाता है. रिलीजन बेसिस पर वो अगर पार्टीज़ बन जाती हैं तो पॉलिटिक्स में उसका सीधा सीधा इंटरफेरेंस है, यानी या पॉलिटिक्स का रिलीजन में इंटरफेरेंस है. सो पॉलिटिकल डोमिनेंस, उसमें भी हम ज़्यादातर हमारे उसमें क्या आता है, पॉलिटिक्स और कम्युनलिज्म में अगर दोनों चीज़ें मिल रही हैं, दोनों साथ दे रही हैं, या एक पार्टी बन रही है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन,
that means politics is going to dominate the religion. राजनीति जो है वो राजनीति जो है धर्म के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, उसको दबाने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी एक जो लीडर है जो एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग कर रहा है और वो अगर पार्टी के लिए वो कोशिश मिले तो वो एक पर्टिकुलर और बहुत सारी ऐसी प्रॉमिसेस करेगा जो कि शायद एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड हो और दूसरे के रिलीजन को शायद वो अनदेखा करने की कोशिश करेगा या उनको इंफीरियर बताने की कोशिश करेगा। सो दिस विल बी पॉलिटिकल डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब दबाना। देन इज़ योर कम्युनल लाइंस। कई बार जो हमारे कम्युनल जो रिलीजियस लोग हैं उसमें वो मोबिलाइज़ करते हैं, चलना शुरू होते हैं कम्युनल लाइंस के ऊपर, धार्मिक प्रवृत्ति के ऊपर। उसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या करते हैं, कई बार रिलीजियस सिंबल्स को यूज़ कर लेते हैं। किस लिए? इमोशनल अपील करने के लिए। यानी कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के पास जा रहा है तो वो जब भी कभी कोई रैलीज़ कर रहा है या फिर कोई वोट मांगने के लिए जा रहा है उनके पास, तो वो उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों की तरह बनने की कोशिश करेगा। रिलीजन सिंबल्स को शायद वो यूज़ करेगा कि देखो जी हम तो आपके ही हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर रिलीजियस सिंबल्स को लेके जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा करने की दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं इस समय सिर्फ इस पर्टिकुलर रिलीजन के साथ हूँ। सो ऑल दिस थिंग्स will be included in the politics just to win the seats, more and more seats for a particular party or for a particular leader. So this communalism is not very good for a particular country. Regarding that only, India secular state is the new concept which is India, our country is a secular country. Secular means no particular religion. That is also I have already explained. No official religion. कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि हमारा ये जो कंट्री है इस कंट्री में सिर्फ यही पर्टिकुलर रिलीजन को हम फॉलो करेंगे। हिंदी में हम इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। सेकुलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी किसी भी धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना। सो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। एक्चुअल में सेकुलरिज्म का मेन डेफिनेशन अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक स्वतंत्रता है कोई भी धर्म अपनाने के लिए। किसी भी धर्म की कोई भी चीज़ को फॉलो अगर किसी ने करना है वो उसको फॉलो कर सकता है। अगर कोई एक धर्म को नहीं अपनाना चाहता है, ही वॉन्ट टू कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन, तो दैट फॉर दैट ऑल्सो ही इज़ फ्री। नेक्स्ट आपका जो आता है कंसेप्ट इसमें, दैट इज़ योर constitutional prohibition against discrimination on ground of religion। जो हमारा संविधान है वो हमें प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है कि किसी भी धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, तो किसी भी धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी विच इज़ प्रूविंग दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। इंडिया जो है हमारा वो एक सेकुलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कि इसमें एक और चीज़ आ रही है, स्टेट कैन नॉट इंटरवेन इन रिलीजियस मैटर्स। स्टेट यानी कि जो हमारी सरकार होती है वो कभी भी किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है। लेकिन हाँ, कभी कभी वो इंटरफेरेंस ज़रूरी हो जाती है इफ़ अगर हम बोलें कि हम सेक्रीफाइस की बात करते हैं कि अगर किसी की लाइफ को वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर। जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम में बलि वगैरह बहुत दी जाती थी, एनिमल्स की हो या फिर ह्यूमन बींग्स की हो, ये धर्म के नाम पर बलि देना ज़रूरी है।
तो उसमें केस में जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो इंटरफेयर करती है। एंड यू हैव सीन सो मैनी केसेस ऑल्सो ऑल ओवर द कंट्री कि अगर कभी ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो दैट पर्सन इज़ सीवियरली पनिश्ड, उसको बहुत कड़ी सज़ा दी जाती है। So I hope this new concept is clear to you people. The last concept, that is your caste. I'll explain you this in my next video.